السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یعنی کہ فلا اقسم، اور مجھے قسم ہے، بمواقع النجوم، ستاروں کی منزلوں کی، انہ لقسم، اور بے شک یہ قسم، لو تعلمون عظیم، اگر تم جان جاؤ، اگر آپ جان جاؤ تو یہ ایک عظیم قسم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی قسم، مجھے ستاروں کی منزلوں کی قسم ہے، اور اگر آپ جان جائیں تو یہ قسم بہت ہی عظیم قسم ہے۔ ہم اس آیت پر ذرا سا غور کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو ایک عظیم قسم کیوں کہا ہے، ایسی کیا خاص بات ہے اس قسم میں، ستاروں کی منزلوں کی قسم میں، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم جان جاؤ تو یہ قسم بہت ہی عظیم قسم ہے۔ اس بات پر غور کرنے کے لیے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے اور سائنس میں جو کچھ بھی معلومات ہمیں حاصل ہیں ان پر غور کریں گے تو جس طرح سے دنیا میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، جس طرح سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح سے ایک ستارہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے۔ ستارے کے پیدائش کی ابتدا ایک ہائیڈروجن کے کلاؤڈ سے ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن جو ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے اور جو اسپیس میں ہوتا ہے، ایکیومولیشن آف ہائیڈروجن، یعنی ہائیڈروجن کا کثیر مقدار میں ایک جگہ پر جمع ہونا، بیکاز آف گریوٹی، یعنی کہ اسپیس میں دوسرے بڑے بڑے اجسام کی وجہ سے، دوسرے بڑے بڑے ستاروں کی وجہ سے کسی ایک ریجن میں ہائیڈروجن ایکیومولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔ دیٹ اسٹیج از کالڈ ایز پروٹو اسٹار، مینس ایک ستارے کے پیدا ہونے کا پہلا اسٹیپ، پروٹو اسٹار۔ اینڈ due to accumulation of hydrogen, there is increase in the density, mass per unit volume increase ہوتا ہے، density increase ہوتی ہے، density increase ہونے سے اس کے اندر بھی گریوٹی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر گریوٹی سے اور کثیر تعداد میں ہائیڈروجن کے کلاؤڈز، ہائیڈروجن accumulate ہونا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے۔ Due to increase in that temperature, there is onset of thermonuclear fusion reactions، یعنی نیوکلیائی حرارتی تعاملات کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان ریئیکشنز کی وجہ سے ٹیمپریچر بے انتہا بڑھ جاتا ہے اور گریوٹی بھی بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ That stage of a star، ستارے کی اس منزل کو
स्टेडी स्टेट ऑफ ए स्टार कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर स्टार एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर मुसलसिल न्यूक्लियाई हरारवी तामुलात, thermonuclear fusion reactions. In thermonuclear fusion reactions, hydrogen accumulates and formation of helium takes place. हाइड्रोजन जमा होते होते ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ट्रिटियम, ट्रिटियम से हीलियम, हीलियम फॉर्म होता है और साथ ही साथ बे इंतहा एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद उसी सितारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद उसमें दो मुमकिनात होते हैं। सितारा अगर सूरज से 1.5 गुना बड़ा है, उसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, यानी कि एक सितारा बनने के लिए सूरज के मास से कम 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए, तो ही वो सितारा बन सकता है। तो उसे बोलते हैं लेस मासिव स्टार। और एक मुमकिनात ये है कि मोर मासिव स्टार, यानी कि एक सितारा कम से कम 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए सूरज से, और अगर वो 30 गुना बड़ा है सूरज से, यानी सूरज के मास से 30 गुना अगर बड़ा है, तो उसके स्टेजेस अलग हो जाते हैं, और सिर्फ कम से कम 1.5 गुना बड़ा है तो उसके स्टेजेस अलग हो जाते हैं। जो सितारा 1.5 गुना बड़ा है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक वाइट ड्वार्फ की शक्ल इख्तियार करता है, यानी सफेद बौना। बौना होने के बावजूद भी सूरज से 1.5 गुना बड़ा होता है। और एक है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो सितारा सूरज से 30 गुना बड़ा है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तमाम मादा फिर से वापस उसी के अंदर आ जाता है, और ये मादा इतने कम रीजन में दबा दिया जाता है, भिचक जाता है कि उसका टेम्परेचर, जबकि सूरज का टेम्परेचर 8000 केल्विन्स होता है, तो इस मादे का टेम्परेचर 20,000 केल्विन होता है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और बहुत ही कम रीजन में उस मादे को दबाया जाता है। इस स्टेज में वो ब्लैक होल कहलाता है। फिर उसके बाद एक और स्टेज आता है जो वाइट ड्वार्फ में आता है। उस स्टेज को कहते हैं रेड जिएंट स्टेज। अब सूरज, फॉर एग्जाम्पल, सूरज इस वक्त अपनी यूथ स्टेज में है, यानी जवानी की स्टेज में है, और अपनी इस यूथ स्टेज में वो मजीद 2 साल रहने वाला है। उसके बाद वो रेड जिएंट स्टेज में जाने वाला है। जब कोई स्टार रेड जिएंट स्टेज में जाता है तो उसका टेम्परेचर हद से ज़्यादा गुजर जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार लाल हो जाता है। जब वो स्टार लाल होता है, यानी कि अगर हम सूरज की ही मिसाल लेंगे तो सन इन इट्स रेड जिएंट स्टेज विल स्वैलो मर्क्यूरी एंड वीनस। अगर सूरज 2 लाख साल के बाद रेड जिएंट स्टेज में जब आता है, यानी सुर्ख हेवला की शक्ल में, तो वो मर्क्यूरी और वेनस को निगल लेगा, और जमीन उसमें जो पैदा होने वाली हरारत है उसी में जलकर खाक हो जाएगी। ये साइंटिस्टों का प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि प्रोटोस्टार से स्टेडी स्टेट स्टार, और स्टेडी स्टेट स्टार से रेड जिएंट स्टेज, ये जो मनाजिल हैं सितारे के इर्तिखा के, इवोल्यूशन ऑफ स्टार के, ये मनाजिल एक मंजिल से दूसरी मंजिल को पहुंचने के लिए 2 लाख साल दरकार है।
2 लाख साल प्रोटोस्टार से स्टेडी स्टेट स्टार, फिर स्टेडी स्टेट स्टार से रेड जिएंट स्टेज को पहुंचने के लिए कम से कम 2 लाख साल लगते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि वो कौन सी हस्ती है जो 2 लाख साल की मंजिल को देखती हो और उसकी गवाही दे और उसकी कसम खाए। कौन सी वो हस्ती है जिसकी इतनी लंबी उम्र है कि 2 लाख साल की एक स्टेज, फिर और 2 लाख साल यानी 4 लाख साल, फिर और 2 लाख साल यानी 8 लाख साल। सूरज भी अपने इस स्टेजस को पार कर चुका है। 2 लाख साल के बाद, 4 लाख साल के बाद अपनी युद्ध स्टेज को आया है और 2 लाख साल इसी तरह से रहने वाला है। तो वाकई अगर हम गौर करेंगे तो अल्लाह की ही वो हस्ती है, वो रब्बुल आलमीन ही वो हस्ती है जो इतनी लंबी तादाद, इतने लंबे सालों के इवेंट्स की, मनाजिल की गवाही दे सकता है और उसकी कसम खा सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और ये कसम अगरचे तुम जान जाओ बहुत अजीम कसम है, क्योंकि कोई हस्ती है ही नहीं, न फरिश्ते हैं, न जिन्नात है, न शैतान है, न ही इंसान है और ना ही कोई ऐसी मखलूक है जो इतने लंबे अरसे की गवाही दे सके और इतने लंबे अरसे को देख सके। ये सिवाय रब्बुल वाहिद ला शरीका लहू की ही हस्ती है जो इस कसम को खाने की हर तरीके से वो इस कसम को खाने के लिए वाजिबुल है। यानी कि अल्लाह ताला वाकई फरमा रहे हैं कि अगरचे तुम जान जाओ सितारों की मंजिलों की कसम क्या है, तो वो क्या है, बहुत अजीम कसम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले ये बात बता दी है कि सितारों की मंजिलें होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स होता है। जबकि साइंस 200, 150 साल या 250 साल पहले कई रिसर्च, कई ऑब्जर्वेशंस, कई सालों की मेहनत के बाद ये मालूम करती है कि सितारे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये उनकी जो नॉलेज है, ये जो उनका ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ फेनामिना है, उनके ऊपर बेस्ड रहता है। कोई साइंटिस्ट सितारे तक जाकर ये तमाम नॉलेज हासिल नहीं किया। यहीं ज़मीन पर बैठकर स्पेक्ट्रम के ज़रिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के ज़रिए और स्पेक्ट्रोस्कोप्स के ज़रिए, टेलीस्कोप्स के ज़रिए स्टडी करके, ऑब्जर्वेशंस करके ये नताइज अख़ज़ किए हैं कि सितारे कई मनाजिल तय करते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने हमको हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कुरान शरीफ के ज़रिए, वही के ज़रिए इतनी बेशबहा नॉलेज हमें यूं ही अता की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।